तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें कई सारे पार्ट है, उसमें एक डायमेंशनल एनालिसिस है। तो पहले हम लोग डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके होम एग्जाम होते हैं उनमें तो आता ही है, और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इससे एक क्वेश्चन बनने के। तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे अगली जो चैप्टर होगा वो एरर एनालिसिस है, वो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर इन दो ही चैप्टर से आया करता है। कराएंगे हम लोग सारे ही, लेकिन पहले लेके चल रहे हैं हम लोग डायमेंशंस। Dimensions of physical quantities. As you know that fundamental quantities, base quantities, these are 7, and these are chosen as a dimensions of physical world. 7 basic or base unit or base quantities or fundamental quantities are length, mass, time, current electricity, temperature, luminous intensity, quantity of matter. Quantity of matter. These are 7 fundamental or base quantities. Dimensions are written under the square bracket like this. So length are represented by L, mass by M, time by T, current electricity by ampere A, temperature Kelvin by K, luminous intensity candela CD Edison volt. It's a representative. But in case of the mechanics, we use only 3: mass, length and time. इन 3 से काम चल जाएगा। मैकेनिक्स में हम लोग ये 3 यूज करते हैं। होल फिजिकल वर्ल्ड we use these 7. Clear? Now, so what is dimension? A representation of any physical quantity in terms of fundamental quantities known as dimensions. Representation of any physical quantity in terms of fundamental quantity known as dimensions. For example, like velocity. If we discuss about the velocity, velocity means displacement upon time or distance upon time, ultimately length upon time. Length represented by L, time by T. So it is m0 L T minus 1 is the dimensional formula of velocity. From the dimensional formula, we can find out which of the fundamental quantity involved in given physical quantity and with what power. For example, in case of the velocity, mass does not involve, length involved by 1 time and time involved by minus 1 time. Similarly, with the help of dimensional formula, we can find out the unit of given physical quantity, like velocity. You know that length by meter, time in seconds. So meter per second is the unit of velocity. तो दो फायदे हो गए। एक तो ये कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व है और कितने पावर से इन्वॉल्व है, ये पता चल जाता है। एंड ऑल्सो वी कैन राइट आउट द यूनिट
SI unit of given physical quantity. Now discuss about the dimensional formula and dimensional equations. First dimensional formula. Like dimensional formula of the velocity is m0 L t minus 1. It's the dimensional formula. और इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है और कितने पावर से इन्वॉल्व है. एक होता है डायमेंशनल इक्वेशन. If physical quantity equate by with its dimensions, a dimensional formula, that is called equation. So V equals to m0 Lt minus 1, that is called dimensional equation. अगर हम इक्वेट कर दें तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा, अदरवाइज डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा. दैट इज द डिफरेंस. तो V equals to Lt minus 1 means dimensional equation and m0 Lt minus 1 is the dimensional formula of velocity. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज. कुछ एक का हम लोग डायमेंशन यहाँ लिख रहे हैं जिसमें कि आपके 11th में दिक्कत ना आए, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं पहले. ऐसे तो 12th की भी फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, वो फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग. 11th की कुछ एक डिस्कस कर रहे हैं और उनसे फिर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं वेलोसिटी से ही. या चलो वॉल्यूम से देखो. वॉल्यूम m0 L3 T0 और सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L. नाउ डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स mass upon volume. Mass are represented by m, volume by L cube, so it is ml minus 3. Now the dimension of density. Velocity. Distance or displacement upon time. L by t or ultimately Lt minus 1. Acceleration. Change in velocity upon time. Change in velocity की velocity होगी. So it is Lt minus 1 upon t, so it is Lt minus 2. Now force. Mass into acceleration. So m Lt minus 2, it is mlt minus 2. Work or energy. Force into displacement, mlt minus 2 into L ml2 t minus 2. Power, Poynter upon time, ml2 t minus 2 divided by t, so it is ml2 t minus 3. Pressure और स्ट्रेस एक ही बात होती है. इट इज फोर्स अपॉन एरिया. ml minus 1 t minus 2. Momentum, mass into velocity, so it is mlt minus 1. Impulse, force into time, so again mlt minus 1. Torque, force into perpendicular distance, ml2 t minus 2 हो जाएगा.
Now, universal gravitational constant. Means capital G. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 9th क्लास में, G m1 m2 by r स्क्वायर. ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है आपका, G cos fr स्क्वायर अपॉन m1 m2. फोर्स का आपको पता है mlt माइनस 2, लेंथ का स्क्वायर, यहाँ मास का स्क्वायर हो जाएगा. और सॉल्व करेंगे, m माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 3, ये हो गया कैपिटल जी का फॉर्म. स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, दैट मींस एक्सेलरेशन ओनली, एल टी माइनस 2 एक एक्सेलरेशन ही होता है. नाउ डिस्कस अबाउट द surface tensor. सरफेस टेंसर इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आता है. सरफेस टेंसर में होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो जाएगा m l0 t minus 2. It is surface tensor. Clear? Now discuss about the relative density. A relative density. Density divided by density. Density of a given body to density of the liquid or water. तो ये रेशियो हो गया सेम क्वांटिटीज का. डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, दैट इज नॉट अ रिलेटिव डेंसिटी. अगर मैं किसी रिलेटिव डेंसिटी बतानी होती तो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द वाटर बताया करते, तो दोनों डेंसिटी होगी, इसलिए डायमेंशन लेस हो जाएगी. m0 l0 t0. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C1 upon C2, the ratio of speed of light in given mediums. Same quantity का ratio हो गया. It is also dimensionless. Angle arc upon radius again is the quantity, the ratio of same quantities, so this is also dimensionless. Straight, change in length upon original length, या change in quantity upon original quantity, same quantity का ratio हुआ करता है, that's why it is also dimensionless. ठीक. Now Planck's constant, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, E equals to h nu. ये एनर्जी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है. So h equals to E by nu. E energy, energy means work done, ml2 t minus 2. Frequency means reciprocal of the time, t minus 1. So it is m l2 t minus 1. एक होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, sigma t to the power 4. Is the, it's not energy only, energy per unit area per second. It's energy per unit area per second. It is Stefan's constant. ये Stefan's law कहलाता है. T is the temperature, fourth power of temperature, और fourth power law भी कहलाता है ये. So it equals to E upon T power 4. It's not energy only. Energy divided by area divided by time, and this Kelvin power 4. So it is
m एलसीएम कैसे हो जाएगा t माइनस थ्री के पावर माइनस फोर. नाउ डिस्कस अबाउट द coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Viscosity is a liquid phase. आगे चैप्टर मिलेगा आपको. ईटा से रिप्रेजेंट होता है और m l minus 1 t minus 1. Now modulus of elasticity. और elastic constant. मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एक ही बात होती है. इट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. बहुत सारे मॉडल्स हुआ करते हैं, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, सबका एक ही फॉर्मूला बनेगा. स्ट्रेस मींस प्रेशर, ml minus 1 t minus 2. ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला था. फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन आपको पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी. दैट्स व्हाई इट इज m l minus 1 t minus 2. जितने भी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होंगे सबका कॉमन फॉर्मूला होगा m l minus 1 t minus 2. जस्ट लाइक अ प्रेशर. प्रेशर के बराबर ही होगा. जस्ट इक्वल्स टू प्रेशर. ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले. देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज और ऐसे बनते चले जाएंगे. एक अगर मैं 12th की बात करें तो एक देखो रेजिस्टेंस का निकालना चाह रहे हैं हम लोग. रेजिस्टेंस क्योंकि आपने 10th क्लास में V इक्वल्स टू IR पढ़ा है. R हो जाएगा V अपॉन I और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था वर्क डन अपॉन चार्ज. 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं आप. वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू करंट. और Q इक्वल्स टू IT होता है, ये भी आपने 10th में पढ़ा है. I स्क्वायर T बन गया. वर्क आपको पता है ml2 t minus 2. ये एम्पियर. इट इज T. क्या बनेगा अभी ml2 a minus 2 t minus 3. ये रेजिस्टेंस का बन गया. तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं. देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज और इस तरह के डायमेंशन लिखते रहेंगे हम लोग. टाइम टू टाइम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे. न्यूमेरिकल में जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लेके चलेंगे. देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज. आपको 25-30 कम से कम याद तो करनी है और जितनी ज़्यादा याद कर लोगे उतना ही आपका बेनिफिट रहता है. जितनी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं दीज आर द अंडर इन 4 कैटेगरीज. इन सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जितने डायमेंशन हमने डिस्कस किए हैं जो नहीं भी किए हैं उन सबको 4 कैटेगरीज में डाला गया है. और कौन कौन सी कैटेगरीज है वो डिस्कस करते हैं हम लोग. पहले लेके चल रहे हैं हम लोग नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. पहले कैटेगरी लेके चल रहे हैं हम लोग नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. दोज फिजिकल क्वांटिटीज having no dimensions but numerically constant under this category. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस तो होगी नहीं और न्यूमेरिकली फिक्स्ड हो उन्हें कहते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. वो इस कैटेगरीज में आएंगी. डायमेंशन भी ना हो, न्यूमेरिकली फिक्स्ड हो, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3
pi e, all are under the category of non-dimensional constant. All trigonometrical factors इसी कैटेगरीज में आएंगे. सेकेंड, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल. Non-dimensional variable, those quantities having no dimensions but are not fixed. उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर सकती है, अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल. देखो एग्जांपल, अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक अलग अलग होता है. वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग है, एयर का कुछ और है, लेकिन डायमेंशन नहीं है. इसलिए किस कैटेगरी में आ गए? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल. एंगल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इस कैटेगरी में आ गए. स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर हम जिम की बात करें, आपको स्प्रिंग खींच रहे, आप थोड़ा खींच पाए, कोई दूसरा बंदा जो 2 महीने से आ रहा है वो ज्यादा खींच देगा, इसलिए स्ट्रेन भी फिक्स नहीं है, लेकिन डायमेंशन नहीं, इसलिए इस कैटेगरी में आ गए. रिलेटिव डेंसिटी, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी हर एक अलग होती है. सिल्वर की अलग है, गोल्ड की अलग है, कॉपर की अलग, आयरन की अलग, सबकी अलग, लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी में. थर्ड कैटेगरी है डायमेंशनल कांस्टेंट. Dimensional constant, those quantities having dimensions but numerically fixed under this category, like capital G, universal gravitational constant, Planck's constant, Stephen's constant, and Wien's constant. These are the dimensional constants. And the fourth category, that is dimensional variable. ये लास्ट कैटेगरी है, तो हम लोग लेके चल रहे हैं डायमेंशनल वेरिएबल. तो 4 कैटेगरीज हैं और हम लोग लास्ट लेके चल रहे हैं, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल. दोस क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस आल्सो वेरिएबल नॉन एज डायमेंशनल वेरिएबल. बाकी की सारी क्वांटिटीज, मैक्सिमम क्वांटिटीज इसी के अंदर आया करती है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, बहुत सारी इसी में आएंगी. जो डायमेंशंस भी हैं और फिक्स नहीं है, वो इस कैटेगरी में आएंगी. इज इट क्लियर? सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशंस भी नहीं है और न्यूमेरिकली फिक्स्ड भी नहीं है, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल भी नहीं है, न्यूमेरिकली फिक्स्ड है, वो इस कैटेगरी में है. नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल मींस डायमेंशन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकली फिक्स्ड भी नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ गई. डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन तो है बट न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, वो इस कैटेगरी में आ गई. डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशंस भी हैं और फिक्स्ड भी नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ गई. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके ऊपर ये डायमेंशंस के यूजेस लेके चलेंगे, इनका यूज क्या है. ओके